Good morning, dear children. Today in science, we will do lesson number 15, our environment. Very good morning to all my dear students. Hope you all are fine and safe at home. I know you also are waiting to come to school as your brothers and sisters from standard 6 to have 8 have started coming. Now in short time you will also come to school. But till then we have to study with the videos. So let's start our new lesson today in the science. That is your lesson number 15. And the name of the lesson is our environment. So all of you will open your textbooks on page number 102 and first write today's date and classwork 18/2/2021 and classwork. Our environment. What is the meaning of environment? Let us read and find out. Environment क्या होता है? जो हमारे आसपास की सारी चीज़ें होती हैं, पानी है, पेड़ पौधे हैं, हवा है, वो सारी जितनी भी नेचुरल चीज़ हमारे आसपास होती हैं वो हमारा एनवायरनमेंट बनाती हैं. So we will read the lesson now. Our environment consists of air, soil, water, plants, animals, sun and all other natural things around us. तो हमारा एनवायरनमेंट किस किस चीज़ों से बनता है? एयर से, हवा से, मिट्टी से, पानी से, पेड़ पौधों से, एनिमल्स से, सन से और जितनी भी नेचुरल चीज़ें हैं हमारे आसपास. नेचुरल चीज़ें मतलब जितनी भी चीज़ें हैं जो गॉड ने बनाई हैं, द गॉड हैज़ गिफ्टेड अस. ऑल दीज नेचुरल थिंग्स मेक आवर एनवायरनमेंट. They are called our resources. We need these to live. When we misuse them, the environment gets polluted and makes us sick. तो ये जितनी भी चीज़ें हैं, हवा है, पानी है, मिट्टी है, एनिमल्स, पेड़ पौधे, ये सारी चीज़ें हमारी रिसोर्सेज हैं. मतलब कि हमारे लिए ज़रूरत का सामान ये हमको देती हैं. अगर ये नहीं होंगे तो हमारा जो है एग्जिस्टेंस इस अर्थ पर नहीं होगा. और अगर जब हम चीज़ों को यूज़ करते हैं तब तक ठीक है, लेकिन जब हम चीज़ों का मिसयूज़ करते हैं, मतलब अगर हमें ज़रूरत नहीं होती फिर भी हम इनका यूज़ करते हैं और इनको बिगाड़ते हैं, बर्बाद करते हैं, तो क्या होता है? एनवायरनमेंट बिगड़ जाता है, ख़राब हो जाता है, पोल्यूटेड हो जाता है. और हमको वो पोल्यूटेड एनवायरनमेंट क्या करता है? वो पोल्यूटेड एनवायरनमेंट मेक्स अस सिक. So when the environment gets polluted, we can fall sick easily. So whatever the God has given us, we should use it properly up to our use only and never misuse or waste those natural resources. जैसे पानी है, अगर हमको पानी की जितनी ज़रूरत है दैट मच वाटर वी शुड यूज़. वी शुड नॉट कीप द टैप फ्लोइंग और द बकेट इज़ ओवरफ्लोइंग व्हेन वी आर टेकिंग अ बाथ और व्हेन वी आर ब्रशिंग वी कीप द टैप ओपन. सो सच थिंग्स वी शुड नॉट डू. पेड़ हैं तो अगर हमको पेड़ों को काटना नहीं चाहिए. दे गिव अस शेड, दे गिव अस फ्रूट्स, wood, so many things they give, medicines they give. So if we cut down the trees also, then also the environment gets polluted. Now you can see here is a picture of you can see the children are playing in the park. This is the sun, clouds, trees, birds, animals, plants, everything is there in this. So all these things make our environment. A clean and healthy environment is very important for life, but many human activities have made this environment dirty. So, if the environment is clean, if the environment is healthy, if the environment is not polluted, then we will also be healthy and safe. And it is very important that we should live in a clean environment, healthy environment to keep ourselves healthy, fit and fine. But there are certain activities that we people do that makes our environment unhealthy or dirty. So many activities we do for our benefits we do, but we don't see that in our benefit there is a huge loss to the in longer run we are only at the loss. हम बहुत बार अभी सोचते हैं कि हम ये कर लेंगे अभी तो इससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है, लेकिन आगे चलकर वही चीज़ें जो हमने की होती हैं हमारे एनवायरनमेंट को ख़राब करती हैं और हमारे लिए नुकसान होता है. जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल इट इज़ गिवन, कटिंग ऑफ ट्रीज मेक्स एयर डर्टी. व्हेन यू कट डाउन द ट्रीज द एयर gets dirty because the trees are
द नेचर हैज़ प्रोवाइडेड अस विद द ट्रीज दैट टेक इन द कार्बन डाइऑक्साइड। जितने भी जो पॉल्यूटेड जो एयर होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, वो ट्रीज एब्जॉर्ब कर लेती है और हमको ऑक्सीजन देती है। लेकिन अगर हम पेड़ ही काट डालेंगे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे एब्जॉर्ब करेगा? पेड़ ही नहीं होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड कौन एब्जॉर्ब करेगा? और उसके साथ क्या होगा, जब कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब नहीं होगा तो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा और ऑक्सीजन कम हो जाएगा। एंड यू नो वेरी वेल दैट ऑक्सीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, बिकॉज विदाउट ऑक्सीजन वी कैन नॉट सर्वाइव। ऑक्सीजन हमारे लिए लाइफ, हमको लाइफ देती है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो हम ब्रीदिंग प्रोसेस कैसे करें? नॉट ओनली वी बट एनिमल्स ऑल्सो नीड ऑक्सीजन टू लिव। तो अगर पेड़ कम होंगे तो ऑक्सीजन कम हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और जितने भी और जहरीले गैसेस जो एटमॉस्फेयर में निकलते हैं बहुत ज़्यादा व्हीकल से, वो सारे बढ़ जाएंगे और हमारा एनवायरनमेंट बहुत ही ज़्यादा पोल्यूट हो जाएगा एंड इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू ब्रीथ विदाउट ऑक्सीजन। नेक्स्ट एक्टिविटी दैट नॉर्मली वी डू इज स्मोक फ्रॉम व्हीकल्स एंड बर्निंग ऑफ वुड एंड कोल पोल्यूट एयर। जो सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम एनवायरनमेंट को जिससे बिगाड़ते हैं, द स्मोक कमिंग आउट ऑफ द व्हीकल्स। हम बहुत ज़्यादा व्हीकल्स का यूज़ करते हैं, इवन दो वी कैन वॉक टू अ सर्टेन स्मॉल डिस्टेंस, देन टू वी डोंट वॉक एंड वी टेक अ व्हीकल एंड गो देयर। दैट मीन्स वी आर बर्निंग द फ्यूल। जो फ्यूल हम बर्न करते हैं व्हीकल में, दैट emits the smoke, and those smoke contains so many gases which are dangerous or which pollutes the environment. And those gases also those gases also harm our body also, because that if we take in our breathing process, if it goes then it gets into our body and harms our body. So it is very important that when we are using the vehicle we see that we use it properly. अगर ज़रूरत नहीं है तो हम चल सकते हैं, नज़दीक में है तो हमको व्हीकल यूज़ नहीं करना चाहिए। हम जितना हो सके उतना कम अगर व्हीकल का यूज़ करेंगे तो हमारा एनवायरनमेंट ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जो भी व्हीकल हम यूज़ करते हैं वी शुड सी दैट द पोल्यूशन दैट द gases that are emitted should be the minimum, because there are certain rules that, and the vehicles also are like that if you want you should properly maintain your vehicle so that the smoke coming out of the vehicle becomes less. So vehicles का होता है, and besides that wood and coal that burns. तो जो मोस्टली इन द विलेजेस दैट हैपेंस दैट पीपल कुक ऑन वुड एंड द कोल, सो उसमें से भी जो स्मोक एमिट होता है दैट ऑल्सो पोल्यूट्स द एनवायरनमेंट। एंड द थर्ड थिंग इज थ्रोइंग ऑफ गार्बेज एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट इन वाटर बॉडीज पोल्यूट्स वाटर। तो व्हीकल से जो है कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज एंड बर्निंग ऑफ फूड एंड कोल एंड द स्मोक कमिंग आउट ऑफ व्हीकल्स दैट पोल्यूट द एयर। बट व्हेन यू थ्रो द वेस्ट गार्बेज, दैट मीन्स द वेस्ट ऑफ योर हाउस और द इंडस्ट्रियल वेस्ट, दैट मीन्स द वेस्ट कमिंग आउट ऑफ द इंडस्ट्रीज, दैट यू थ्रो इट इनटू द वाटर बॉडीज, जैसे कि रिवर्स है, पॉन्ड्स है, लेक्स है, उनके अंदर जो हम अपने घर का कचरा है या फिर जो आसपास के में जो फैक्ट्रीज हैं वो जो अपना गंदा पानी या जो कचरा होता है वो नदी के पानी में डालते हैं, सो दैट पोल्यूट्स द वाटर। तो वो जो वाटर होता है उसको भी वो भी पोल्यूट हो जाता है, एंड दैट मीन्स देन इट बिकम्स अनफिट फॉर यूज़। बट मेनी टाइम्स सी इन द विलेजेस दिस हैपेंस, सो पीपल एज वेल एज द एनिमल्स हैव टू ड्रिंक दैट वाटर बिकॉज देयर इज नो अदर ऑप्शन अवेलेबल टू देम टू of the water. So many a times people have to drink those polluted water and then they become sick. They fall sick and sometimes it becomes fatal also. So we should not throw the garbage or the industrial waste जो waste factory में से निकलते हैं उनको पानी के अंदर नहीं डालना चाहिए। इफ़ यू वांट टू थ्रो इट इन वाटर देन दीज इंडस्ट्रियल वेस्ट जो होते हैं फैक्ट्री के वेस्ट, दे शुड बी ट्रीटेड फर्स्ट एंड देन दे शुड बी डिस्पैच्ड or thrown into the water body so that the river does not get polluted, because in the rivers also, in the ponds and lakes also, there are many water animals that exist. छोटे बड़े बहुत सारे ऐसे पानी के अंदर भी जीव होते हैं जो रहते हैं, और अगर पानी pollute हो गया then those animals will die because of that polluted water. Wants to know what happens if the water bodies get polluted. अगर पानी गंदा हो जाता है तो क्या होता है? तो गंदे पानी में क्या क्या होता है? इट ब्रीड्स मॉस्किटोज, flies which causes disease. We can fall sick if we use this water. और polluted water पीने से ना
केवल ऐसा नहीं है कि जो है मॉस्किटोज़ और फ्लाइज़ ही होते हैं, लेकिन उस पानी के अंदर जो केमिकल आता है, और अगर हम उस पानी को, केमिकल वाले पानी को हम यूज़ करते हैं, तो हम वैसे भी बीमार पड़ सकते हैं. बिसाइड्स दैट मॉस्किटोज़ एंड फ्लाइज ऑल्सो ब्रीड इन टू दैट. Now it is Dabby's time. What will you do to the banana skin after eating a banana in a car or बस? अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं किसी कार या बस में, और आपने बनाना खाया, सपोजिंग. नाउ इफ़ यू वांट टू थ्रो द स्किन ऑफ द बनाना, व्हाट आर यू गोइंग टू डू? टिक राइट फॉर द करेक्ट आंसर. हियर 3 options are given. Throw it out of the vehicle, put it in a bag or any other thing so that you throw it later, and leave it in the vehicle for someone else to throw. आप या तो गाड़ी में से, जो है खिड़की में से, गाड़ी की या बस की खिड़की में से आप उसको बाहर फेंक देंगे, या फिर किसी एक बैग में ऐसे चीज़ में रखेंगे जिससे कि आप आगे जाकर उसको डस्टबिन के अंदर डाल दें, और या फिर उसको व्हीकल के अंदर ऐसे ही छोड़ देंगे कि कोई आकर उठाए और उसको फेंक दे. द सेकेंड ऑप्शन इज़ करेक्ट. पुट इट इन अ बैग और एनी अदर थिंग टू थ्रो इट लेटर. मतलब बाद में इसको एक बैग के अंदर भर के रखेंगे, और बाद में जहाँ पर भी डस्टबिन आता है, देयर यू विल थ्रो द बनाना स्किन. The first option is also wrong, that we should not throw anything out of the window of any vehicle when we are traveling. Neither we should leave any of the wastes that we have food we have eaten in the vehicle for someone else to clean it. हमको हमारा कचरा अब खुद ही जो है डस्टबिन में डाल देना चाहिए. Now we can play an important role in saving our environment. Till now on page number 102 we studied about how we pollute the environment, how we disturb our environment by cutting down of trees, by the smoke of the vehicles or from wood or from coal, and by throwing the waste in the industrial waste and the home waste in the water bodies and pollute the water. Now here we will learn how we can protect our environment, how we can save our environment. हम अपने environment को कैसे बचा सकते हैं और कैसे जो है हम उसको अच्छे से देखभाल कर सकते हैं. द फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी कैन सेव आवर एनवायरनमेंट इज़ बाय प्लांट मोर ट्रीज. ट्रीज मेक ट्रीज योर फ्रेंड्स एंड हेल्प देम ग्रो इन नंबर. मतलब आप ट्रीज़ को जो है क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ को उगाइए, और ट्रीज़ को अपना अगर दोस्त बनाएंगे तो नेचुरली वो आपकी फ्रेंड बनेंगे और आपकी रक्षा करेंगे. ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ ग्रो करिए और हमारे एनवायरनमेंट को मोर एंड मोर हेल्दी बनाइए. बिकॉज नाउअडेज इज़ लॉट ऑफ पोल्यूशन इन द एयर. बहुत सारे फैक्ट्रीज़ हैं, बहुत सारे व्हीकल्स हैं, तो हर जगह से जो होता है स्मोक आता है, और उस स्मोक की वजह से क्या होता है, एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा पोल्यूट हो गया है. ये जो गर्मी इतनी हम लोग को लगती है वो भी इसी वजह से है कि हमारा एनवायरनमेंट जो है, एटमॉस्फेयर में इतना ज़्यादा जो एयर पोल्यूशन है, जो इतनी ज़्यादा ऐसी गैसेस इकट्ठी हो गई हैं एटमॉस्फेयर के अंदर जो उसको ज़्यादा गर्म बनाती है, और जो ऑक्सीजन का लेवल है या जो और जो दूसरी गैसेस है जो हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन रखते हैं, वैसी गैसेस का लेवल जो है एटमॉस्फेयर में कम हो गया. इसका रीज़न क्या है? एक तो हम व्हीकल्स का ज़्यादा यूज़ करते हैं, और सेकेंडली हमने बहुत सारे पेड़ों को काट दिया है. पेड़ों को तो कट किया है, लेकिन ऑन द अदर हैंड वी हैव नॉट ग्रोन द न्यू ट्रीज. इफ़ यू आर गोइंग टू कट द ट्री देन यू शुड फर्स्ट plant 1 tree, 2 or 5 trees, and then you should cut 1 tree. अगर एक पेड़ काटते हैं तो उसके सामने आपको कई पेड़ लगाने पड़ेंगे, तब जो है वो बैलेंस होगा एक पेड़ काटने का. बिकॉज ट्रीज टेक ईयर्स टू ग्रो, and for cutting you just take few seconds to or few minutes to cut down a whole tree. पेड़ तो उगने में, बड़ा पेड़ होने में कितने साल लग जाते हैं आपको पता होगा. अगर आपके घर में गार्डन है, आप कोई पेड़ उगाते हैं, तो कितने सालों बाद वो पेड़ बड़ा होता है, लेकिन हम काटते हैं तो उसको हार्डली 5-10 मिनट्स में कट कर देते हैं. तो अगर हम एक पेड़ काटते हैं तो उसके सामने हमें कई पेड़ लगा के एनवायरनमेंट में जो है बैलेंस करना होगा. नाउ सेकेंड इज़ योर do not litter places around you with empty poly bags, wrappers, cartoons, etc. Throw them in the dustbin. And second thing what we do is normally we throw the pieces of paper here and there around. फिर पॉली बैग्स होते हैं, देयर पॉलीथीन बैग्स, इनके प्लास्टिक बैग्स जिसमें हम सामान लाते हैं, रैपर्स होते हैं किसी चीज़ के, या फिर कार्टून्स, बड़े बड़े कार्टून्स होते हैं जिसके अंदर सामान पैक करके आता है, हम सब रास्ते में ऐसे इधर उधर फेंक देते हैं. तो हमको वो नहीं करना चाहिए. हमको सारी चीज़ें कलेक्ट करके एक जगह रखनी चाहिए, और फिर उसको सारा जितना भी कचरा है वो दैट ऑल शुड बी थ्रोन इन द डस्टबिन टुगेदर. यू शुड नॉट थ्रो इट हियर एंड देयर. सो
that also pollutes the environment. And especially we should not use the poly bags or the polythene bags to take the things. जितना हम polythene का ज़्यादा use करते हैं, that means more and more waste of polythene we are creating. And that polythene bags that we throw here and there emits a lot of gases which are not good for our health because they don't get decay. पॉलीथीन बैग कभी भी गलता नहीं है और उसके छोटे छोटे भले ही ऐसे हमको लगता है हमने उसके पीसेस हो जाते हैं, लेकिन एक्चुअली वो गलते नहीं हैं, डीके नहीं होते, दे डोंट गेट मिक्स इन द सॉइल. वो मिट्टी में जाकर जो है जहरीले गैसेस बनाते हैं जो कि मिट्टी को भी पोल्यूट करते हैं, सॉइल को भी पोल्यूट करते हैं और हमारे एनवायरनमेंट को भी, हमारे एयर को भी पोल्यूट करते हैं. इसलिए इट इज़ बेटर नॉट टू यूज़ द पॉलीथीन बैग्स व्हेन यू गो टू परचेज एनीथिंग. अपने घर से either you carry a paper bag or you carry a bag made out of cloth to take the things from the market, and stop using the poly bags if you want to save our environment. इसलिए हमें पॉलीथीन बैग्स का कम से कम उपयोग करना चाहिए. अगर हम सामान खरीदने जाते हैं तो हम घर से एक कपड़े का बैग अपने साथ लेकर जाएंगे और उसी में सारा सामान लेकर आएंगे. इससे किसी भी तरीके का पॉली वेस्ट जो है वो नहीं होगा. और इसी तरीके से रैपर्स और कार्टून्स को भी हमको प्रॉपरली डस्टबिन के अंदर फेंकना चाहिए. Now Dabby wants to know how can you save paper. आप पेपर को कैसे बचा सकते हैं? बाय वाइसली यूजिंग इट वाइसली एंड नॉट वेस्टिंग इट. हम पेपर को तभी बचा सकते हैं अगर हम कोई भी पेपर में कुछ लिखते हैं तो हमको ये ध्यान रखना है कि अगर कुछ रॉन्ग होता है तो हम कट करके वहीं से लिख के रादर देन टेयरिंग द होल पेज एंड थ्रोइंग इट इन द डस्टबिन. हमको वाइसली यूज़ करना चाहिए, अच्छे से ध्यान से यूज़ करना चाहिए और पेपर को वेस्ट नहीं करना चाहिए. बिकॉज यू नो पेपर इज़ मेड आउट ऑफ वुड ओनली एंड वुड वी गेट फ्रॉम द ट्रीज. टू मेक द पेपर वी नीड टू कट द ट्रीज एंड द मोर एंड मोर वेस्टेज ऑफ पेपर will be done. That means more and more trees need to be cut, which is going to create an imbalance in the nature. Moving on to page number 104, you can see, do not waste paper, save as much paper as you can. This is wrong. This child is tearing the paper and throwing the bits of paper here and there. That means he is wasting the paper. That we should not do, because as I told you that paper is made out of wood और wood हमको पेड़ों से मिलता है और हमको ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ काटने पड़ेंगे जब हम जितने ज़्यादा हम पेपर वेस्ट करेंगे. So we should wisely use the paper and not to waste it. Second is, use paper, jute or cloth bag. Avoid using polythene bags. So as I told you that when you go to the market, you can use a paper bag, jute bag or a cloth bag. We should not use any of the polythene bags because they do not get decay and emit those the poisonous gases from it after some time. So this one is right. We should carry a cloth bag. Then do not waste electricity. As you can see, nobody is sitting here but the fan is moving. तो जो लाइट और पंखे हम जो सारे दिन चालू रखते हैं, that is wrong. If you are not sitting in the room, if you are not using electricity, we should not waste it. When we move out of the room, we should close all the switches so that the electricity is not wasted, because electricity is also generated from coal and water only. And if we use more of electricity, that more of water will be needed to generate electricity. जितनी ज़्यादा हम electricity यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा पानी जो है वो बिजली को बनाने के लिए जाएगा. और वो पानी जो हमको शायद गाँव में जिन लोगों को पानी नहीं मिलता, पीने को मिल सकता था, वो पानी हम बिजली बनाने के लिए यूज़ करते हैं. सो दिस इज़ रॉन्ग. इस तरीके से हम अपने एनवायरनमेंट के अंदर बहुत सारे इम्बैलेंसेस क्रिएट करते हैं. ऐसी छोटी छोटी जो हमारी आदतें होती हैं उनको हमको जो है वो रेक्टिफाई करना चाहिए. वी शुड चेंज आवर हैबिट्स टू सेव आवर एनवायरनमेंट, because if environment will not be there, if proper healthy clean environment is not available, our survival will be difficult. Then next is, water is very precious, use it carefully, save as much water as you can. So अगर पानी का नल कहीं भी आप देखते हैं कि नल चालू है and nobody is there, nobody is using that water, go and close the tap. Don't leave that water flowing unnecessarily. Don't waste it. It is very precious. I think you don't know the importance how precious the water is. If you go to the places in the interior of the villages, you will find that people don't have water to drink also. They have to walk miles and miles and kilometers to fetch just one pot of water, and then that too not good quality of water. वो भी ऐसा गंदा पानी उनको मिलता है पीने के लिए. हमको पानी मिलता है तो हम वेस्ट करते हैं. that we should not do, because आज हमारे पास पानी है, कल इसी तरीके से अगर हम वेस्ट करते रहेंगे, we will also
will not get water to drink also. And water is very important because without water you cannot do anything. पेड़ पौधे उगते हैं, खाना मिलता है, फ्रूट्स वेजिटेबल्स जो भी कुछ मिलता है वो पानी की वजह से ही है. अगर पेड़ों को पानी भी नहीं मिलेगा तो वो भी सर्वाइव नहीं करेंगे. सो वाटर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीवन, प्लांट्स, ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, एवरीवन नीड वाटर. सो वी शुड यूज़ इट केयरफुली. नेक्स्ट इज डू नॉट बर्न क्रैकर्स. ये जो हम पटाखे फोड़ते हैं दिवाली में या कभी शादियों में, बहुत सारे हम पटाखे आवाज़ वाले और बहुत ज़्यादा धुआं वाले जो होते हैं पटाखे फोड़ते हैं, तो वो हमको नहीं करना चाहिए. इफ़ यू वांट, इफ़ यूज़ दोज टाइप ऑफ क्रैकर्स विच emit less smoke and less noise, because it creates noise pollution also, and the smoke that comes out of those crackers is too much. It's very difficult. If you are there when you are burning the crackers, then you can see that so much of smoke is there that sometimes it is difficult to breathe also. So we should stop using crackers which emit lot of smoke and noise. Then take care of animals around you. Then there are many street animals are there. Street dogs होते हैं, cats होते हैं, उनके puppies होते हैं, तो उनका अगर हम ध्यान रखेंगे तो हमारे जो एनिमल लाइफ है जो है रिसोर्सेज, एनिमल्स आर ऑल्सो पार्ट ऑफ आर रिसोर्सेज. सो वी शुड टेक केयर ऑफ देम एंड सी दैट दे ऑल्सो सर्वाइव, बिकॉज इफ एनिमल्स विल नॉट बी देयर देन अगेन ऑल्सो अ लॉट ऑफ इम्बैलेंस विल बी क्रिएटेड, बिकॉज ह्यूमन्स, एनिमल्स, प्लांट्स, एवरीथिंग इज कनेक्टेड बाय अ चेन. सो अगर एक भी चीज़ जो है चेन के अंदर नहीं हो गई, दैन चेन विल ब्रेक एंड अ इम्बैलेंस विल बी क्रिएटेड इन द एटमॉस्फेयर. तो हमको जितने भी हमारे आसपास के ऐसे एनिमल्स होते हैं, स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, कैट्स होते हैं, या बहुत सारे यू कैन सी द roaming cows and over here also, then you should take care of that. So that will be also help in creating a balance in our atmosphere. If because animals will survive, then only we are also going to survive. Now these small steps will help to protect the environment and make the earth a beautiful place to live in. So it's not difficult. These are all the easiest things that we can do it. In these, there's nothing difficult, like we should not waste paper, we should plant more trees, we should not waste water, we should not waste electricity, we should take care of the animals around us, we should not burn crackers, we should use the cloth bag rather than using a plastic or a polythene bag. So ऐसी सारी चीज़ें जो हैं हम कर ही सकते हैं, इसमें से कुछ भी ऐसा नहीं है जो हम नहीं कर सकते हैं. इसलिए हमको इन सारी चीज़ों को फॉलो करते हुए हमारा अर्थ विच इज़ सच अ ब्यूटीफुल प्लेस दैट गॉड हैज़ गिफ्टेड अस टू लिव इन, वी शुड मेक इट मोर ब्यूटीफुल एंड प्रोटेक्ट इट एंड सेव इट फ्रॉम गेटिंग इट डैमेज्ड. सो डियर चिल्ड्रन, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ द एनवायरनमेंट एंड व्हाई शुड वी कीप आवर एनवायरनमेंट क्लीन एंड हेल्दी. क्योंकि अगर हमको रहना है इस दुनिया में, अच्छे से रहना है, तो पहले हमको हमारे एनवायरनमेंट को, हमारे प्लानट अर्थ को रखना होगा. अगर वही रहेगा तभी हम रहेंगे, नहीं तो हम नहीं रहेंगे. Now, know with DABI, this is an information that has been shared. Worldwide Fund for Nature, that is WWF, is an organization that works towards the सर्वाइविंग वाइल्ड लाइफ. दिस लॉट ऑफ वाइल्ड लाइफ इज देयर. वाइल्ड लाइफ मीन्स जो एनिमल्स जो होते हैं जंगल में रहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द वाइल्ड लाइफ. सो देयर इज एन ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड विच इज़ कॉल्ड एज वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर. ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो सारे दुनिया में जितने भी वाइल्ड लाइफ है उनको प्रोटेक्ट करते हैं, उनको रक्षण देने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया है दैट लुक्स आफ्टर द वाइल्ड लाइफ इन द एंटायर वर्ल्ड. सो वी शुड ऑल्सो सी दैट हमारे आसपास एटलीस्ट वी कैन नॉट सेव द वाइल्ड लाइफ, बट we can save the trees, we can save the animals that are around us, and just help them a little bit in saving our environment. Now next is your Dabby's time. Write any 3 things you can do to save the environment. ऐसी कौन सी 3 चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं अपने environment को सेव करने के लिए? Plant more trees, do not waste paper, use paper, jute or cloth bag, avoid using polythene bags, do not waste electricity, and do not burn crackers. I have written 4 or 5. You can write any 3. तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं जिससे हम हमारे एनवायरनमेंट को सेफ रख सकते हैं. नाउ दिस इज रिकॉल विथ डाबी. दिस इज ऑल द इन द शॉर्ट इट इज़ गिवन व्हाट दिस लेसन सेज. ऑल नेचुरल थिंग्स लाइक वाटर, सॉइल, एयर, प्लांट्स, एनिमल्स एंड द सन फॉर्म आवर एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट किससे बनता है? पानी, मिट्टी, हवा, पेड़ पौधे, एनिमल्स और सन से और बनता है. मैन हैज़ पोल्यूटेड द एनवायरनमेंट बाय सम ऑफ हिज एक्टिविटीज़. हम इंसानों ने एनवायरनमेंट को पोल्यूट किया है क्योंकि हमारी एक्टिविटीज़ ऐसी हो गई हैं. हम अपने सुविधा के लिए जो चीज़ें हम खड़ी करते हैं वो वातावरण के लिए, नेचर के लिए ख़राब हो जाती हैं बहुत बार.
तो हमको ध्यान रख के जो है कोई भी हम अपनी सुविधा के लिए जो कोई भी चीज़ करते हैं तो इस चीज़ का हम ध्यान रखें कि वो नेचर को ख़राब नहीं करनी चाहिए, एनवायरनमेंट को इससे कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए। अब हम देख सकते हैं कि इंसान ही है जो एनवायरनमेंट को ख़राब करता है। कभी एनिमल्स या प्लांट्स को आपने देखा है कि वो नेचर को डिस्ट्रॉय करते हैं? दे नेवर डू। इट इज़ द ह्यूमन बींग्स ओनली दैट डू इट। वी कैन प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन सेविंग आर एनवायरनमेंट। अब जो ख़राब हो गया है उसको सही करने का काम भी हमारा ही है, तो हम अपने नेचर को सेव कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा तो सबसे अच्छी चीज़ जो हम कर सकते हैं दैट इज़ प्लांटिंग मोर एंड मोर ऑफ ट्रीज। Now next is your fill in the blanks. Tab-based questions. Question number A. Fill in the blanks. Litter should be thrown in the dustbin. Second one. The environment consists of our resources. Third one. We should avoid using polythene bags. Fourth one, we should not waste paper and electricity. Moving on to next page, that is your page number 106. Question number B. Tick the correct answer. These are your MCQs. First one, what makes our environment? Everything around us or only the sun and the earth? First option is correct. Everything around us makes our environment. Second one, how can a polluted environment harm us? It can make us sick. It can make the earth beautiful. Again, the first option is right. It can make us sick. What pollutes air? Planting trees or cutting trees? Option B is correct. Cutting trees pollute the air. What pollutes the water? Garbage and waste from industries or smokes from vehicles. Option 1 is correct. Garbage and waste from industries pollute the water. Now question number C is make a happy face for the correct statement and sad face for the incorrect statement. So here it is given here. You can either just draw here only or you can make like this. I have drawn here so you can see it more clearly. First one, we should burn plenty of crackers. You have to make a sad face. This is wrong. Now dear children, this can also come as right and wrong. So आप यहाँ wrong भी लिख सकते हैं. We should not use polythene bags. Happy face. This is right. Garbage should always be thrown in the dustbin. Yes, happy face. This is correct. It is good to waste water. It is wrong. So sad face. And we should not cut trees. It is happy face because it is right. Now next one is question number D. Write any 3 human activities that pollute the environment. कोई भी 3 ऐसी एक्टिविटीज़ लिखनी है जो हम लोग करते हैं, ह्यूमन बींग्स करते हैं और हमारे एनवायरनमेंट को ख़राब बनाते हैं. First one, cutting of trees makes it dirty. Smoke from vehicles and burning of wood and coal pollute the air. Throwing garbage and industrial waste into water bodies pollute water. So these 3 activities, main activities are there which makes our environment dirty. Here environment includes the air and water both. Now next is discuss in class. Paper is made for trees. Suggest some ways to recycle the paper. Now there are many ways to recycle the papers. ऐसा नहीं कि recycle means उसको वापस उसके form change करें. But recycling means the same paper that you have used can be utilized in some other form also. Like for example, if you have written in the half page and next year your one notebook is there in which so many pages are there that you have not used, and next year you are in the new class. So you can use the remaining pages and the pages where the half of pages are lying, you can use to do your work at home. उसके में आप घर में उस नोटबुक्स में आप काम कर सकते हैं. आप जो घर में मैथ्स की प्रैक्टिस करते हैं या कोई पेपर्स लिखते हैं, जो भी आप घर में अलग से स्टडीज़ करते हैं उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं. अगर आप पेपर का कुछ बना रहे हैं, सपोजिंग यू आर मेकिंग अ क्राफ्ट आउट ऑफ दैट पेपर, तो सबसे पहले आपको रफ पेपर के लिए कुछ ट्राई करना है तो आप जो है पुराने जो लिखे हुए पेपर्स हैं जो वेस्ट हैं जिसमें हम और कुछ नहीं लिख सकते, उनको यूज़ करके आप कुछ भी बनाइए तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी. फिर जब आपका परफेक्ट हो जाएगा तो आप जो है अच्छे नए क्राफ्ट पेपर में कर सकते हैं. इस तरीके से आप जो है पेपर्स को रिसाइकल कर सकते हैं. विल यू सजेस्ट टू योर यंगर ब्रदर और सिस्टर टू सेव
electricity? Yes, definitely. I will suggest my younger brother and sister and all the members of my family not to waste the electricity, because it is also very precious. As water is precious, same with the electricity is also very precious. हम जो electricity waste करते हैं, actually अगर हम वो waste नहीं करते हैं तो वही electricity कितने सारे गाँवों को लाइट पहुंचाने में काम आ सकती है. But because we waste in the cities, so much of consumption of electricity is there in the cities that doesn't reach the places where it should reach, or the people who don't have the electricity can get it. So we should try and not avoid wasting the electricity as far as possible. At least we should start putting a habit of switching off the lights when we come out of the room. Now next is your page number 107, fun with Dabby, do and learn. Look at the pictures given below. Color the circle red if you think what is the child is doing is correct, otherwise color it black. Now here you can see the circles are provided. If it is right, you have to color it red. If it is wrong, you have to color it black. Like this child is throwing it the garbage in the dustbin, it is right, so you have to color it red. Now second one, you can see everything is here, the room is messy, that means this is wrong, so you color it black. Then this girl is plucking the flower, it is wrong, so color it black. Now this child is taking care of this animal, that is correct. That means these two you have to color red and these two you have to color black. Next is your Dabby's web chart, pollution of environment. So how many different ways we pollute the environment? Cutting of trees, smoke from vehicles and burning of food, and throwing of garbage and industrial waste into the water bodies. So these are the three major reasons of polluting the environment. And how we can save the environment? This is the second web chart, saving the environment. अगर हमने pollute किया है तो अब हम उसको कैसे बचा सकते हैं? Plant more trees, do not waste paper, and do not waste electricity. तो waste paper, waste electricity, waste water, आप कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हैं. So dear children, with this we come to the end of lesson number 15, and this was the last lesson in our SEM 2 course. Just one activity, that is your revision exercise is left, that we will do on the next turn. Today in lesson 15, you just have to complete all these exercises in the टेक्स्ट बुक ओनली. आज जितना भी मैं एक्सप्लेन किया है सब कुछ आपको टेक्स्ट बुक के अंदर फिनिश करना है. नेक्स्ट टाइम वी विल राइट एवरीथिंग इन द नोटबुक. आई होप नेक्स्ट टाइम जब हमारा साइंस का टर्न आए, आई सी ऑल यू इन द स्कूल, एंड व्हेन द स्कूल रीओपन्स आई वांट एवरीवन टू अटेंड द स्कूल. हम चाहते हैं सारे बच्चे स्कूल में आए और अच्छे से स्कूल में पढ़ाई करें, बट विद द प्रिकॉशंस जो हमको लेने हैं वो सारे प्रिकॉशंस के साथ आप स्कूल में आएंगे और अच्छे से पढ़ाई करेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ. विद इन फ्यू डेज आई कुड सी यू ऑल इन द स्कूल. बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे.